Hello student, in this video we will discuss the next question. The question is, the image formed by a spherical mirror is real, inverted and is of magnification -2. If the image is at a distance of 30 cm from the mirror, where is the object placed? Okay, find the focal length of the mirror, list two characteristics of the image formed if the object is moved 10 cm towards the mirror. Okay, first of all we will decode the information given in the question. Okay, so here I have already highlighted some points. As you can see, the image is real and inverted and is of magnification -2. Okay, magnification is also given here. And if the image is at a distance of 30 cm, okay, if image is at a distance of 30 cm means image distance v is already given here. Okay, from the mirror, where is the object placed? It is asking about where is the object placed, means it is asking about u. Okay, find the focal length of the mirror, list two characteristics of the image formed if the object is moved 10 cm towards the mirror. Okay, here we need to find out focal length of the mirror, first case, and the second case is we need to mention two characteristics of the image. Okay, means it is where it is forming when we are moving it towards the mirror 10 cm. Okay, so let's note down the information. Okay, so here it is given that image is real and inverted. Okay, and magnified also. We already know that magnification is -2 given here. Okay, which means image is greater than 1. The value of magnification is greater than 1 means image will be enlarged or magnified in this case. Okay, then image is magnified, then which is the mirror used for magnifying the image? That is a concave mirror. Okay, it will be a concave mirror. ये एक कॉनकेव मिरर होगा क्योंकि इसमें इमेज क्या हो रही है? मैग्नीफाइड हो रही है, रियल भी है और ये एक इन्वर्टेड इमेज भी है. ओके, तो हमें अब इसमें करना क्या है? हमें यहाँ पे पता है मैग्नीफिकेशन गिवन है m = -2. हमें इस -2 को यूज़ करके, और यहाँ पे हमें दिया है इमेज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 cm. इमेज कितनी डिस्टेंस पे बन रही है मिरर से? 30 cm पे. तो हमें यहाँ पे v भी गिवन है. v कितना है? 30 cm. अब ये होगा कैसा? नेगेटिव होगा क्योंकि इमेज रियल है और इन्वर्टेड है, यानी कि मिरर के एक ही साइड बन रही होगी ये. तो हमें पता है m = फॉर्मूला होता है माइनस का v/u. ओके, तो m की वैल्यू -2, माइनस का साइन इसको ऐसे ही रखेंगे हम. v की वैल्यू -30 सेपरेट रखनी है हमें. ओके, हमें u की वैल्यू इसमें इवेल्यूएट करके बतानी है. देन माइनस विल बी कैंसल्ड and we need to find out u = 30/2. ओके, -30/2 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. ये आएगा -15 cm. ओके, तो अब हमें यहाँ पे पता है v पता है हमें -30 cm, हमें यहाँ पे u पता है -15 cm. ओके, हमें यहाँ पे पता करना है कि यहाँ पे f कितना होगा. हमें मिरर फॉर्मूला पता है, वी नो मिरर फॉर्मूला that 1/f is equals to 1/u plus 1/v. Okay, then 1/f is equals to 1/u की वैल्यू कितनी है? -15 एंड प्लस v की वैल्यू कितनी है? -30. we can simply add it 2/-30 plus 1/-30. it will be -2 - 1/30. 1/f = -3/30. It will be cancelled. Then we can simply find out f = -10 cm. Okay, now let's understand further characteristics. अब इतनी चीज़ों से पहले हम इसका रे डायग्राम बना के देखते हैं कि ये क्या था. हमारा एक मिरर है. ओके, यहाँ पर हमें फोकस दे रखा है 10 cm, यानी कि यहाँ पे इसका फोकस है 10 cm पे. ओके, और हमें u पता है, u कितना है 15 सेंटीमीटर, यानी कि 10 से थोड़ा ज़्यादा होगा,
तो u अगर f यहाँ पे 10 सेंटीमीटर तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसकी पता लग गई। ऑलमोस्ट इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 होने वाली है। ओके, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ से कहाँ तक मेजर करते हैं? पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक। ओके, तो यहाँ पर हमें जो ये रखना है, इस ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ रखना होगा? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखना होगा, क्योंकि u हमें 15 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 10 और यहाँ पे 5, तो यानी कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अभी हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है। ओके, फिर इसकी जो भी इमेज बनेगी वो हम ड्रॉ कर लेंगे। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें एक चीज़ गिवन है कि ऑब्जेक्ट को हम 10 सेंटीमीटर मूव करा रहे हैं टुवर्ड्स द मिरर। ओके, तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक 15 सेंटीमीटर है, ओके, ये यहाँ से यहाँ तक अभी 15 सेंटीमीटर है, तो जब 10 सेंटीमीटर हम इसे मूव करा देंगे तो हमें क्लियर सी बात है, एक नई कंडीशन हमें पता लगेगी कि ऑब्जेक्ट रखा कहाँ पर है। ऑब्जेक्ट रखा होगा पोल ऑफ फोकस के बीच में, क्योंकि 15 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर अगर इसमें से कम कर दें तो ये 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा होगा, और हमारा फोकस ऑलरेडी 10 सेंटीमीटर पे है। ओके, तो यानी कि अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? पोल और फोकस के बीच में आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगी 5 सेंटीमीटर की। ओके, हमने क्वेश्चन में किया भी है। अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? -15 सेंटीमीटर हमें पहले से पता है, हमें घटाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, कितना? क्योंकि हम 10 सेंटीमीटर मूव कर गए। ओके, तो यहाँ पे माइनस का 15 माइनस माइनस प्लस 10 इक्वल टू माइनस का 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे बचेगी। ओके, तो ये जो अब पोल और फोकस के बीच में यहाँ पे कंडीशन आई है, तो हमें पता है कि अब इसको इजीली हम ड्रॉ कर सकते हैं। इस केस में इमेज कैसी बनती है? एनलार्ज्ड बनती है और वर्चुअल बनती है। ओके, तो यानी कि हमें यहाँ पे पता लग रहा है इसकी कैरेक्टरिस्टिक की इमेज कैसी होगी? वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, यानी कि सीधी इमेज बनेगी, और क्या होगा? ये एनलार्ज्ड इमेज होगी, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में थोड़ी सी बड़ी बनेगी। ओके, तो हम ऐसे u, v और f की वैल्यूज रख करके हम इसमें पता लगा सकते हैं कि इसका रे डायग्राम कहाँ पर बनेगा। तो इस तरह से हम f की वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ पे हम u की वैल्यू रख सकते हैं। ऐसे ही जब u और f की वैल्यू से हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने से क्या होगा? हमें c पॉइंट मिलेगा, f पॉइंट हमें मिल चुका है। अब हम ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये 20 सेंटीमीटर हुआ यहाँ से। अब अगर ये 25 सेंटीमीटर पे गिवन होता तो हम केस रखते दैट ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड द सी। अगर ये गिवन होता कि ऑब्जेक्ट इज़ एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, तो यानी कि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है। अगर ये गिवन होता कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है 10 सेंटीमीटर पे, तो ये ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है। तो इस तरह से हम रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं।